Participants, Praveen Joshi sir is back with us. Now let us start with our webinar. So I kindly again request you all to keep your videos on and mic on mute so that the vibrant will be more effective and you will enjoy. So hand over to Praveen sir. Sir. Hello. Yes, sir, you are audible. Yes. Good morning all. Sorry for interruption. I'm warm welcome to Shri Suraj Agrawal sir from Surendra Institute, Surendra Group of Institution, and I have started my brief note on domestic wastewater treatment. Can you see my PowerPoint presentation? You are seeing my PowerPoint presentation? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Sir, your voice is not audible. हेलो सर आवाज कुछ कम आ रही है आपकी. आवाज आ रही है सर अभी फिलहाल? प्रवीण सर वॉइस क्रैक हो रही है आपकी एक्चुअली. Some internet error is here. Maybe it is recovered. हेलो. हाँ जी बोलिए. यस सर. आ रही है आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी. Okay, तो we are starting domestic wastewater treatment. How to treat the domestic wastewater? We are starting from our how we are using water and what is the domestic wastewater. Generally, we are using our water for our domestic purpose, like in house, in hospitals, in hotels, where we are using in bathroom for bathrooms and toilets, from where we use our water for different use. Typically, this use mainly divided in two parts. First is domestic and second is industrial. Domestic waste is generated from our households or from hospitals, where we are using for our daily purpose use. Second is industrial use. Industrial use water is totally chemically used water, which are processed from the different industrial. So domestically used water is called as sewage treatment, sewage wastewater. Sewage wastewater generally comes out from houses, industrial, and hospitals. This domestic wastewater contains generally 70% of organic matters, organic content, organic matters, having a heavy load of biological oxygen demand, which is through bacteria or pathogens or like gases. So we are after the use of daily uses water, the domestic wastewater generate from our hospitals or hotels or industries, hospitals, hotels. So what is the domestic wastewater? Just you see the where we are using the water, from where we generate the domestic wastewater. Generally, we are using in our bathrooms for bath or in kitchen or in bathrooms, or generally washing of clothes. Due to that, 80% of water generally drained to our in septic tank or through in direct sewerage line. It is called domestic wastewater. Generally, domestic wastewater containing 70% of organic and 30% of inorganic compounds. Organic compounds are biological oxygen content, like bacteria, pathogens, or some type of gases which are cause our water to wastewater. In organic compounds, 30% compounds are organic compounds, which are as a heavy metals or like nitrogen, oxygen, like that.
So domestic wastewater is water which produced from human activity and households. It is called domestic wastewater. Generally, domestic wastewater treatment derived from the for content of content of biological and chemical oxygen demand. Due to that, our water is contaminated. Generally, domestic wastewater can be treated as in two types: aerobic condition or in anaerobic condition. In aerobic condition, we treatment is provided through oxygen. In where we provided oxygen to wastewater for generation of bacteria to eat their colonies or foods. In aerobic condition, treatment is based where septic tank is allowed, where in absence of oxygen. Domestic wastewater generally treated for giving of oxygen, because वेस्ट जो भी वेस्ट वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी वाटर ऑक्सीजन की कमी के कारण वेस्ट वाटर बनता है. उस बेसिस पे हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है या एनारोबिक ट्रीटमेंट होता है. एरोबिक ट्रीटमेंट वो होता है जिसमें हम वेस्ट वाटर को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं. ऑक्सीजन सप्लाई इसलिए की जाती है ताकि जो भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई है उसको कम किया जाए, या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो बढ़ी है उसको कम किया जाए. एनारोबिक कंडीशन वो होती है जिसमें हम बिना ऑक्सीजन के किसी भी वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं. इसका एनारोबिक का पर्टिकुलर जो उदाहरण है वो सेप्टिक टैंक है, जहां पर बिना किसी एयर के हमारा वेस्ट वाटर ट्रीट होता है. एरोबिक सिस्टम ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड फॉर किसी भी हॉस्पिटल, होटल्स या इंस्टीट्यूशन के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है वो एरोबिक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को पर्टिकुलर लेवल पर ऑक्सीजन वाटर में दी जाती है, जिसके साथ में बैक्टीरिया डेवलप किए जाते हैं. और domestic wastewater, different type of process available, in which three type of mainly provided. One is MBBR based treatment. ये मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप की जाती है जो मूविंग होती है, इसलिए उसको मूविंग बेड ट्रीटमेंट बायोफिल्म रिएक्टर कहा जाता है. दूसरा होता है फ्लूइडाइज्ड एरोबिक बेड सिस्टम. ये फ्लूइडाइज्ड एरोबिक सिस्टम जो हेवीली स्लज होता है उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है. थर्ड है FBBR ट्रीटमेंट, फिक्स बेड बायोफिल्म रिएक्टर. इसमें फिक्स बैक्टीरिया की कॉलोनी फिक्स्ड होती है जिनको जनरली डेवलप किया जाता है. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जनरली जो यूज किया जाता है वो MBBR मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर का ही जनरली यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होता है. सेकंड, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है. FBBR टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है. So on the basis of this all factor, MBBR technology is always suggested for STP. MBBR, what is the MBBR technology? MBBR technology general moving bed biofilm reactor होता है, जिसमें कि जनरली ऑक्सीजन डिमांड होता है, और जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उसको एज ए फूड यूज करके अपना कॉलोनी डेवलप करते हैं, जिसके थ्रू हमारा BOD कम होने से अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और पानी साफ हो जाता है. इस ट्रीटमेंट में तीन टेक्नोलॉजी होती है. फर्स्ट चीज होता है प्राइमरी टेक्नोलॉजी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट.
जनरली प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो भी सीवेज होता है उसका मेन पार्ट जो इट कंसिस्ट स्लज स्लज होता है या फिर कोई कुछ भी एबनॉर्मल चीज या स्टोन्स या जो भी सेडिमेंटेशन लाइक जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ट्रीट किए जाते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग के थ्रू अपना पूरा जो भी सॉलिड स्लज होता है वो अलग किया जाता है। उसके बाद उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में की स्टेज में जो भी फ्लोटिंग आर्टिकल्स होते हैं वो सब वहीं पर ट्रीट किए जाते हैं, जिसको ट्रीट करने के बाद आगे अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सेकेंड होता है सेटलिंग ट्रीटमेंट। बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें मूविंग बेड बैक्टीरिया बायोरिएक्टर तैयार किया जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप की जाती है और उसमें अपना जो वेस्ट वाटर होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद फीड किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद फीड किया गया जो भी वेस्ट वाटर होता है वो हमारे एमबीबीआर रिएक्टर में मिनिमम 6 आवर तक रिटेंशन टाइम रहता है। उसमें रिटेंशन टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ हमारा हुआ है एमबीबीआर टेक्नोलॉजी में, उसको हम टाइम देते हैं ताकि वो अपना फूड एज ए फूड उस वेस्ट वाटर में जो भी वेस्ट मटेरियल उसको यूज कर लें और उसका स्लज बना दें। ये स्लज एक्टिवेटेड स्लज होता है जिसको कंटिन्यूस रिसाइकल किया जाता है। इस 6 घंटे के बाद जो हमारा 6 घंटे के बाद जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो कम्प्लीटली 90 to 95% पोल्यूटेंट फ्री हो जाता है और इसको एरोबिक कंडीशन में हम पूरा ये ट्रीटमेंट सिस्टम करते हैं। इसके बाद यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद पूरा वेस्ट वाटर हमारा सेटलिंग टैंक में जाता है, जहाँ की और जितना भी स्लज हमारे डोमेस्टिक वेस्ट में होता है वो वहां जाकर सेटल हो जाता है। सेटलिंग टैंक का जो मेन पार्ट होता है वो उसके सेटलिंग मीडिया होता है, जिसके थ्रू पानी ऊपर आता है और जितना भी स्लज होता है वो, क्योंकि स्लज हेवी होता है इसलिए वो नीचे बेस में रुक जाता है और पानी हमारा ओवरफ्लो होने के लिए आगे बढ़ जाता है। सेटलिंग टैंक तक का जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम एमबीबीआर टेक्नोलॉजी कहते हैं और ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें लगभग 90 to 95% पोल्यूटेंट फ्री वाटर हमको मिलता है। इसके आगे टर्सरी ट्रीटमेंट होता है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक का जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है ये होता है प्री ट्रीटेड वाटर। इसको एक्चुअली प्री ट्रीटेड इसलिए क्या कहा जाता है ताकि इसमें हम हमारा अगर कोई लोड बायोलॉजिकल लोड और बचा हो या कोई केमिकल लोड और बचा हो तो उसको आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, इस फर्दर ट्रीटमेंट के बाद हम टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट में जनरली अपना कार्बन सैंड फिल्टर होता है, जिसके थ्रू जो भी एक्स्ट्रा स्लज या और कुछ स्मॉल पार्टिकल्स या सस्पेंडेड सॉलिड कोई होते हैं वो हमारा सैंड फिल्टर के थ्रू पास होने पर वहीं पर रुक जाता है। सैंड फिल्टर का मेन जो पर्पस है वो यही है कि आगे हमारे सस्पेंडेड सॉलिड जो भी हो वेस्ट वाटर में वो वहां पर अपना उसको एब्जॉर्ब कर ले। सैंड फिल्टर के बाद जस्ट ट्रांसफर होता है कार्बन फिल्टर में। कार्बन फिल्टर का जो यूज है, कार्बन फिल्टर जनरली जो भी पैथोजेंस या स्मेल जो भी हमारे डोमेस्टिक वेस्ट में होता है उस स्मेल और पैथोजन को कम करता है। ये कार्बन ट्रीटमेंट जो भी होता है वो एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू होता है, जिससे हमारा जो वेस्ट वाटर है लगभग 100% पूरा पोल्यूटेंट फ्री हो जाता है। टर्सरी ट्रीटमेंट में एक क्लोरीन ट्रीटमेंट और किया जाता है। क्लोरीन ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी स्मेल या
कोई रेशेस गैसेस का और इफ्लुएंट में हो तो उसको कम किया जा सके। आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट, क्लोरीन ट्रीटमेंट, 100% डोमेस्टिक वेस्ट वाटर completed as treated water। ये ट्रीटेड वाटर आगे चल के हम जहाँ भी हमारा यूज हो, लाइक गार्डन में यूज हो या फिर आपका एग्रीकल्चर या फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का जनरल ट्रीटमेंट जो होता है वो एमबीबीआर मिक्स्ड बेड बायोरिएक्टर्स के थ्रू होता है, और टर्सरी ट्रीटमेंट में सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर एंड आपका क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है। 99% से लेके 100% तक डोमेस्टिक वेस्ट वाटर टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद रीयूजेबल वाटर हो जाता है, जिसको हम फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन में देने के लिए यूज कर सकते हैं, या फ्लोर वॉश में यूज कर सकते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट, this is the process flow chart of domestic wastewater and typical picture of STP, sewage treatment plant. MBBR technology generally used in India for sewage treatment plant because इसका लो कॉस्ट मेंटेनेंस और लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट के कारण MBBR टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। सुरेंद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ट्रीटमेंट प्लांट शुरुआत की गई है, जिसमें फर्स्ट फेज में 200 KLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट MBBR टेक्नोलॉजी पर लगाया जा रहा है, जिसके थ्रू टोटल हॉस्पिटल का, हॉस्टल्स का और ऑफिस का या आपके हॉस्पिटल्स का सभी का वेस्ट वाटर एक ही जगह कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके जहां से 200 KLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इस 200 KLD के STP से ट्रीटमेंट करने के बाद ट्रीटेड वाटर जो यूज किया जाएगा वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, और जो पूरा AGI का जो एग्रीकल्चर फॉर्म है वहां पर फार्मिंग के लिए अलग अलग क्रॉप और फ्रूट्स के लिए उसका यूज किया जाएगा। AGI ने स्पेशल सिविल और मैकेनिकल STP प्रोवाइड किया है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया गया है वो लगभग 1000 KLD वेस्ट वाटर को यूज ट्रीट करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा सुरेंद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलग अलग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पर भी काम कर रहा है, जिसमें फर्स्ट तो वाटर मैनेजमेंट का वर्क किया जा रहा है, जिसमें शुरुआत में जहां से पानी केनाल के थ्रू पानी लिया जा रहा है वहां पर चेक डैम के थ्रू उस पानी को स्टोर किया जाता है, जहां से स्टोर होके और फिल्टर करके अपना पानी को ओवरहेड टैंक्स में पहुंचाया जाता है। ओवरहेड टैंक्स से जो वाटर यूज पॉइंट है वहां पर वो पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया गया है। इस जहाँ से यूज होता है पानी, जहाँ भी यूज हो रहा है हॉस्पिटल में, होटल्स में, हॉस्टल्स में, वहां से जो पानी डोमेस्टिक यूज हो रहा है वो 80% वेस्ट वाटर जनरेट करता है। वो वेस्ट वाटर डायरेक्ट पाइपलाइन और ड्रेन के थ्रू सीमेंटेड लाइन टैंक बनाया गया है SGI द्वारा, जिसको बिल्कुल लाइन किया गया है ताकि कोई भी वेस्ट वाटर हमारे ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट नहीं करे। ये जो सीमेंट लाइन टैंक बनाया गया है उसके थ्रू पानी पूरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया जाएगा। इस ट्रीटमेंट के बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद ओवरहेड टैंक्स बनाए गए हैं, जिसमें पूरा ट्रीटेड वाटर स्टोर किया जाएगा, और स्टोर करने के बाद इसको अलग अलग जगह पे रीयूज किया जाएगा, ताकि जो भी पानी अपना SGI ले रहा है केनाल से उसको पूरा यूज करने के बाद फर्दर
फार्मिंग के थ्रू उसको जीरो डिस्चार्ज में काम लिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो वाटर मैनेजमेंट एसजीआई का है वो बेस्ड है जीरो वेस्ट वाटर जनरेशन और जीरो वेस्ट वाटर डिस्पोजल का है। क्योंकि फिलहाल जो नॉर्म्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के हैं उसका उनके ये नॉर्म्स हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना जो पानी यूज कर रहे हैं या वेस्ट वाटर जो जनरेट कर रहे हैं वो किसी भी नदी या नाले या किसी भी सीवरेज लाइन में नहीं छोड़ सकते। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सुरेंद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 200 KLD का STP लगा रहा है और उसी के थ्रू पूरा जीरो डिस्चार्ज मेंटेन किया जाए। इसी मैनेजमेंट में आगे SGI रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसके के थ्रू पूरा जो कॉलेज बिल्डिंग्स हैं, एडमिन बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी का जो रूफ वाटर कलेक्ट करके और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का गार्डन तैयार किया गया है जिसके के थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा रहा है। क्योंकि ग्राउंड वाटर जितना रिचार्ज होगा उतना ही आपके बोरवेल्स और इन सभी का उपयोग हम कर सकेंगे। इसी के साथ में चेक डैम जो बनाया गया है केनाल वाटर के यहाँ पर उसके थ्रू भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है क्योंकि जितना पानी वहाँ पर स्टोर होगा वो अल्टीमेटली सीपेज होकर ग्राउंड वाटर को ही इंक्रीज करेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ सोलर एनर्जी पर भी SGI ने काम किया है और टोटल 800 मेगावाट का सोलर एनर्जी सिस्टम लगाया गया है ताकि जो भी एनर्जी SGI यूज कर रहा है वो पूरा सोलर सिस्टम के थ्रू यूज कर रहा है और जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो अपना पूरा जो सोलर सिस्टम पे तैयार किया गया है उसके थ्रू यूज कर रहे हैं। और सोलर एनर्जी यूज करने के लिए 800 मेगावाट का प्लांट जो छत आपके रूफटॉप पे लगाया गया है उसी के थ्रू अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ले रहे हैं। SGI का एक डेंटल कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल्स भी है। हॉस्पिटल्स जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी कलर कोड बकेट्स अलग अलग सोर्स पर लगाए गए हैं ताकि बायोमेडिकल वेस्ट किसी अदर सॉलिड वेस्ट से नहीं मिले। अदर सॉलिड वेस्ट से मिलने के बाद वो बायोमेडिकल वेस्ट कंटेमिनेशन पूरा सॉलिड वेस्ट को कंटेमिनेट करेगा और कंटेमिनेट करने के बाद पूरा इन्वायरमेंट को हमारे हार्म करेगा। इसीलिए SGI ने जितना भी सोर्सेज है वहाँ पर अलग अलग कलर कोड बकेट रखे हुए हैं ताकि बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट किया जा सके अलग और उनको बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अकॉर्डिंग डिस्पोज किया जा सके। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में ही ग्रीन बेल्ट का काम SGI द्वारा किया गया है। SGI ने टोटल अलग अलग गार्डन तैयार किए हैं और इसी के थ्रू टोटल एरिया का 33% प्लांटेशन और गार्डन तैयार किया गया है। इन सभी कंडीशन में SGI इन्वायरमेंट का जो भी नॉर्म्स है वो कंप्लाई कर रहा है। थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट टू मैम प्लीज कोऑर्डिनेट। हेलो हेलो हेलो। Yes. Praveen sir, on behalf of everyone here today, I thank you for your insights today. The session was highly informative. In case anyone has any query, they may ask. Yes, participants, if you have any query, you may ask either by raising your hand or by
simply asking the question. Yes, Tamanna. Yes, Tamanna Sharma, do you have any query? गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। Yes, sir. Thank you. बहुत बढ़िया था आपका सेशन और सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इंस्टीट्यूट को। जी, और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप अगर कुछ भी समझना चाहते हैं ये मॉडल के बारे में सुंदर कॉलेज के, तो आप ऑफिस में आके पूछ सकते हैं और उनको अच्छा एक्सप्लेन किया जाएगा। जो सर ने बताया है वो प्रैक्टिकली किसी ने देखना हो तो वो देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए पूरे इस कैंपस को। Thank you, Praveen ji, for joining us for the webinar today. Hello. Basic. Yeah, am I audible, Ankita? Yes, ma'am. Rajni ma'am, you're audible. Yeah, thank you, Praveen ji, for joining us today. Your webinar was highly informative. I think the students have gathered a lot of information from your webinar today. Thanks a lot for connecting with us, ji. Thank you so much. Suraj sir Ankita, you has can given. ask if anybody has any query, and I think our HOD Rachna Kaushik also wanted to say something. Yes, ma'am. So Yes, you can ma'am. put her on. Yes, please. Yes, Thank ma'am. Now I would like to hand over the meeting to Rachna ma'am, HOD of Civil Department, to conclude the webinar. Hello, everyone. Hello. Yes, ma'am. Rachna ma'am, you are audible. Oh, yes. Thank you, ma'am. Thank you, sir. सबने आप लोगों ने इतना पार्टिसिपेट किया और सर आपने इतनी वैल्यूएबल नॉलेज हम लोगों को दी। एक्चुअली आज का जो टाइम चल रहा है इसके अंदर ट्रीटमेंट तो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर ने बताया एसजीआई काफी अच्छा कर रहा है। एसजीआई काफी अच्छा कर रहा है। यदि हम वेस्ट वाटर को अपन ट्रीट कर लें, अभी सर ने बहुत अच्छे ट्रीटमेंट बताए, जिसके अंदर बताया कि हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उस वेस्टेज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं और उस वेस्ट वाटर को रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है। और अभी सर ने बताया भी हमारे जो कॉलेज है सुरेंद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने काफी अच्छे प्लांट्स लगा रखे हैं, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके और क्या है ग्रीन एनवायरनमेंट, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, ये सब किया। अभी हमारे यहाँ जो 800 मेगा का सोलर प्लांट चल रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी हमें बहुत ही अच्छे रेट पे हम लोगों को प्रोवाइड हो रही है। और अभी सर ने कहा बायोमेडिकल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट को हम लोगों ने कंबाइन ना करके, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शंस लेंगे, आपस में क्या होगा, इनके केमिकल रिएक्शंस होंगे और उससे क्या होगा, हम लोगों को जो चीजें हम लोग, जैसे हम लोग इन चीजों को कहाँ यूज करते हैं, इस वेस्ट को हम लोग अपने यहाँ खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में भी आपका यूज कर लेते हैं। ठीक है सर, काफी अच्छा दिया आपने। और जो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, अभी आपने ये कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि वाटर टेबल टाइम टू टाइम नीचे जा रहा है, वाटर टेबल है काफी नीचे जा रहा है। जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना एक पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है भी हम लोग क्या करें, भी हम कुछ ना कुछ ऐसा करके भी हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो आज हम लोग प्रेजेंट के अंदर हैं, यदि प्रेजेंट में इन टेक्निक्स को यूज करेंगे तो वो टेक्निक्स क्या होगी, हमारे जो आने वाले लोग हैं वो क्या बेनिफिशियल होगा इन सब चीजों से। थैंक यू सर, काफी अच्छा नॉलेज दिया। ये बच्चों के लिए भी हमारे प्रोजेक्ट भी करते हैं, इंजीनियर हमारे बच्चे भी बनाते हैं, करते हैं। थैंक यू सर। Thank you so much, Rachna ma'am. Thanks a lot. There are 3 students who has raised their hand. Divya Kaushik, do you have any query? Sir, unmute karna. हेलो, क्या कर दी हूँ? Yes, Divya Kaushik.
Okay. Satvik Joshi. Okay. I'm sure that everybody have more understanding about the domestic wastewater treatment. So Suraj sir has also given us a very nice opportunity to look. If you want to have the practical knowledge, you can come here in the office and can visit the domestic water treatment also system here. So now, student, I hope you got really enlightened with the insight of our topic, with our opinions. So now I would like to thank our Honorable Chairman, Sir, Mr. Suraj Agarwal, our esteemed Managing Director, Mr. Gaurav Gupta, our respected Executive Director, Ms. Rajni Agarwal, ma'am, for sparing their valuable time. Apart from this, my gratitude to all the elite members for the patience listening. Once again, thank you, Praveen sir. Thanks a lot for sharing the valuable information with us. Thank you. Thank you, participants.